بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب بڑے بڑے شہروں میں دائیاں اور نرسیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن دیہاتوں میں ابھی تک زچہ خانہ روش قدیم کی طرح بھنگنوں کے ہی دائرہ اقتدار میں ہے، اور ایک عرصہ دراز تک اس میں اصلاح کی کوئی امید نہیں۔ بابو مہیش ناتھ اپنے گاؤں کے زمیندار ضرور تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے، زچہ خانہ کی اصلاح کی ضرورت کو بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن عملی مشکلات کو کیا کرتے؟ دیہات میں جانے کو کوئی نرس راضی بھی نہیں ہوئی تو ایسا معاوضہ طلب کر لیتی تھی کہ بابو صاحب کو سر جھکا کر چلے آنے کے سوا کوئی تدبیر نہ سوچتی۔ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ہمت ہی کیوں کر ہو سکتی تھی؟ ان کا حق الخدمات تو غالباً بابو صاحب کی نصف ملکیت بیج ہونے پر بھی پورا ہوتا تھا۔ آخر جب 3 لڑکیوں کے بعد یہ چوتھا لڑکا پیدا ہوا تو پھر وہی گوڈر کی بہو۔ بچے بیشتر رات ہی کو پیدا ہوتے تھے، چنانچہ آدھی رات کو بابو صاحب کے چپراسی نے گوڈر کی ہانک لگائی، چماروں کی ٹولی جاگ اٹھتی۔ گوڈر کے گھر میں اس روزے سعید کی مہینوں کی سے تیاری تھی۔ خدشہ تھا تو یہی کہ کہیں بیٹی نہ ہو جائے، نہیں تو پھر وہی بندھا ہوا روپیہ اور وہی ایک ساڑی مل کر رہ جائے گی۔ اس مسئلے پر میاں بیوی میں بار بار تبادلہ خیالات ہو چکے تھے، شرطیں لگ چکی تھی۔ گوڈر کی بہو کہتی تھی کہ اگر اب کی طرف بیٹا ہوا تو منہ نہ دکھاؤ، ہاں منہ نہ دکھاؤں، اور گوڈر کہتا تھا کہ دیکھو بیٹی ہوگی اور بیچ کھیت بیٹی ہوگی، بیٹا پیدا ہوا تو مونچھیں منڈوا لوں گا۔ شاید گوڈر سمجھتا تھا کہ اس طرح بنگن میں مخالفانہ جوش پیدا کر کے وہ بیٹے کی آمد کے لیے رشتہ تیار کر رہا ہے۔ بنگن بولی، اب منڈوا لے مونچھیں داڑھی جا۔ کہتی تھی بیٹا ہوگا، پر سنتے نہیں ہو، اپنی رٹ لگائے رکھتے ہو، خود تیری مونچھیں منڈواؤں گی، کھونٹی تو رکھوں گی نہیں۔ گوڈر نے کہا، اچھا موڑ لینا بھلی مانس، مونچھوں کا کیا، پھر نکالیں گی نہیں؟ تیسرے دن پھر دیکھوں گی جو کہ تم ہے، مگر جو کچھ ملے گا اس میں آدھا رکھ لوں گی، کہہ دیتا ہوں۔ بھنگن نے انگوٹھا دکھایا اور اب 3 مہینے کے بچے کو گوڈر کے سپرد کر دیا۔ سپاہی کے ساتھ چل دی۔ گوڈر نے پکارا، ارے سن تو، کہاں بھاگی جاتی ہے؟ مجھے بھی تو روشن چوکی بجھانے جانا پڑے گا۔ بنگن نے دور سے کہا، تو کون سا بڑی مشکل ہے، وہیں دھرتی پر لٹا دینا اور روشن چوکی بجھانا، میں آ کر دودھ پلا دیا کروں گی۔ مہیش ناتھ کے یہاں بنگن کی خوب خاطر کی گئی۔ صبح کو ہریرا ملتا، دوپہر کو پوڑیاں اور حلوہ، تیسرے پہر کو پھر اور رات کو پھر گوڈر کو پھر بھی بھرپور پروسا ملتا تھا۔ بنگن اپنے بچے کو دن بھر میں 2 بار سے زائد دودھ نہ پلا سکتی، اس کے لیے اوپر کا دودھ مہیا کر دیا جاتا۔ بنگن کا دودھ بابو صاحب کا بچہ پیتا تھا اور یہ سلسلہ 12ویں دن بھی بند نہ ہوا۔ مالکن موٹی تازی عورت تھی، مگر اب ہی کچھ ایسے اتفاق ہوا کہ دودھ ہی نہیں۔ 3 لڑکیوں کے بعد اتنا افراد سے دودھ ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو بدہضمی ہو جاتی تھی۔ اب کی ایک بوند نہیں بنگن جنائی بھی تھی اور دودھ پلاتی تھی۔ مالکن نے کہا، بنگن ہمارے بچے کو پال دے، پھر جب تک جیے بیٹھی کھاتی رہنا، 5 بیگھے معافی دلوا دوں گی، تیرے پوتے تک کھائیں گے۔ اور بنگن کالا ڈالا اوپر کا دودھ ہضم نہ کر سکتے کہ باعث بار بار کہہ کرتا اور روز بروز لاغر ہوتا جاتا تھا۔ بنگن کہتی، اور مونڈن میں جوڑے لوں گی، بہو جی کہہ دیتی ہوں۔ بہو جی، ہاں جوڑے لینا بھائی، دھمکاتی کیوں ہے؟ چاندی کے لے گی یا سونے کے؟ واہ بہو جی واہ، چاندی کے جوڑے پہن کے کیسے منہ دکھاؤ گی؟ اچھا سونے کے لینا بھائی، کہتی تو ہوں۔ اور بیاہ میں کنٹالوں کی اور چودھری گوڈر کے لیے ہاتھوں کے توڑے، بہو جی وہ بھی لے لینا، وہ دن تو بھگوان دکھائیں۔ گھر میں مالکن کے بعد بھنگن کی حکومت تھی۔ مہریاں، مہاراجن، مزدورنیاں سب اس کے روب مانتی تھی، یہاں تک کہ خود بہو جی اس سے دب جاتی تھی۔ ایک بار تو اس نے مہیش ناتھ کو بھی ڈانٹا تھا، ہنس کر ٹال کے۔ بات چلی تھی بھنگیوں کی۔ مہیش ناتھ نے کہا، دنیا میں اور چاہے کچھ ہو جائے بھنگی رہیں گے، انہیں آدمی بنانا مشکل ہے۔ اس پر بنگن نے کہا، مالک بھنگی تو بڑے بڑوں کو آدمی بناتے ہیں، نہیں کیا کوئی آدمی بنائے گا؟ یہ گستاخی کر کے کسی دوسرے موقع پر بھلا بنگن سلامت رہتی۔ سر کے بال اکھاڑ لیے جاتے ہیں، لیکن آج بابو صاحب ہنسے اور کہکا مار کر بولے، بنگن بات بڑے پتے کی کہتی ہے۔ بنگن کی حکومت سال بھر تک قائم رہی، پھر چھن گئی۔ بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا،
अब ब्राह्मणों ने भंगी का दूध पीने पर एतराज किया। मोटे राम शास्त्री तो प्रायश्चित की तजवीज कर बैठे, लेकिन महेश नाथ अहमक ना थे। फुटकार पिलाई, प्रायश्चित की खूब कही आपने शास्त्री जी, कल तक इस भंगन का खून पीकर पिला और आज प्रायश्चित करना चाहे, वाह। शास्त्री जी बोली, बेशक कल तक भंगन का खून पीकर पला, गोश्त खाकर पला, ये भी कह सकते हो, लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज है। जगन्नाथपुर में छूत अछूत सब एक साथ खाते हैं, मगर यहाँ तो नहीं खा सकते, खिचड़ी तक खा लेते हैं। बाबूजी और क्या कहें, पूरी तक नहीं रहती, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नहीं खा सकते। तो इसके मायने ये है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजा महाराजा जो चाहे खा लें, जिसके साथ चाहे खा लें, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, इनके लिए कोई कैद नहीं। राजा है, मगर हमारे और तुम्हारे लिए तो कदम कदम पर बंदिशें हैं, इसका धर्म है। प्रायश्चित तो हो ना हो, लेकिन भंगम से इसकी सल्तनत छीन ली गई। बर्तन, कपड़े, अनाज इतनी कसरत से मिले कि वो अकेली ना ले जा सकी, और सोने के जोड़े भी मिले और एक दो नई खूबसूरत साड़ियां, मामूली नैन सुखी नहीं जैसी लड़कियों की बार मिलती थी। इस साल चेचे का जोड़ हुआ। गॉर्डर पहले ही सत में आ गया, भंगन अकेली रह गई, मगर काम जूं का तू चलता रहा। भंगन के लिए गॉर्डर इतना जरूरी ना था जितना गॉर्डर के लिए भंगन। लोग मुंतजिर थे कि भंगन अब गई। फलां भंगी से बातचीत हुई, फलां चौधरी आए, लेकिन भंगन कहीं ना गई। यहाँ तक कि 5 साल गुजर गए और मंगल दुबला, कमजोर और दायमुल मर्ज रहने पर भी दौड़ने लगा। माँ का दूध नसीब ही ना हुआ, दायमुल मर्ज क्यों ना होता। एक दिन भंगन महेश नाथ के मकान पर नाला साफ कर रही थी। महीनों से गलास जमा हो गई थी, आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। बूढ़ा दाना हाथ परनाले के अंदर था कि यकायक इसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया और इसी वक्त एक लंबा सा काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर इसे मार डाला, लेकिन भंगन को ना बचा सके। ख्याल था कि पानी का सांप है, ज्यादा जहरीला ना होगा। इससे पहले कुछ गफलत की गई, जिस पर जब जहर जिस्म में पेवस्त हुआ और लहरें आने लगी, तब पता चला कि पानी का सांप नहीं, काला सांप था। मंगल अब यतीम था। दिन भर महेश बाबू के दरवाजे पर मंडलाया करता था। घर में इतना जोटा बचता था कि ऐसे 10-5 बच्चे शेर हो सकते थे। मंगल को कोई तकलीफ ना थी। हाँ, दूर से इसे मिट्टी के एक सकोर में खाना डाल दिया जाता था और गांव के लड़के इससे दूर दूर रहते थे। ये बात इसे अच्छी ना लगती थी कि सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, इसके लिए मिट्टी के सकोरे। यूं से तफरीक का मुतलिक एहसास ना होता, लेकिन लड़के से चिढ़ा चिढ़ा कर इस जिल्लत के एहसास को शान पर चढ़ाते रहते थे। मकान के सामने एक नीम का दरख्त था, इसके नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 सकोड़े और धोती जो महेश बाबू के खुशनसीब फरजंद सरचेश के हाथ उतारे कपड़ों में थे, एक थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम के लिए वो एक आरामदेह जगह थी। यहाँ इसी खूसूसियत और सख्त जान मंगल झुलसती हुई लू और कड़ाकेदार जाड़े और मूसलाधार बारिश में जिंदा था और तंदुरुस्त था। बस इसी का कोई रफीक था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने हम चश्मों की बदमजाजियों और तंग ज़ल्फियों से तंग आकर मंगल के ज़ेरे साया आ पड़ता था। खाना दोनों का एक था। कुछ तबीयत भी यकसा थी और गालबन दोनों एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ हो चुके थे। मंगल ने इसका नाम रखा था टॉमी, मगर टॉमी महेश नाथ के अंग्रेजी कुत्ते का नाम था, इसलिए इसका इस्तेमाल वो इस वक्त करता जब दोनों रात को सोने लगते। मंगल कहता, देखो टॉमी, जरा और खिसक कर सो, आखिर में कहाँ लेटूं? सारा डांट तो तुमने घेर लिया। टॉमी को कूं करता, तुम हिलाता, बजाय इसके खिसक जाए और ऊपर चढ़ जाता और मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वो एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फौज का छप्पर गिर गया, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब सिर्फ आधी दीवार खड़ी थी, जिसका ऊपरी हिस्सा नोकदार हो गया था। यहाँ इसे मोहब्बत की दौलत मिली थी, वही मजा, वो याद, वही कशिश, और एक बार हर रोज इस वीराने में खींच ले आती और टॉमी हमेशा इसके साथ होता था।
वो खंडर की मखरूती दीवार पर बैठ जाता और जिंदगी के आने वाले गुज़िश्ता ख्वाब देखने लगता, और टॉमी दीवार पर कूद जाने की बार बार नाकाम कोशिश करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे, मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। सुरेश को इस पर रहम आया कि खेलने वालों की जोड़ी पूरी ना पड़ती थी। कुछ ही देर में इसने तजवीज की कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए, यहाँ कौन देखने आता है। सुरेश ने मंगल से पूछा, क्यों रे, खेलेगा? मंगल बोला, खिलाओगे तो क्यों नहीं खेलूंगा। सुरेश ने कहा, अच्छा तो हम तीनों सवार बनते हैं और तुम टट्टू बन जाओ, हम लोग तुम्हारे ऊपर सवार होकर घोड़ा दौड़ाएंगे। मौसम के लिए वो एक आरामदेह जगह थी। यही सी खसूसियत थी कि वो सख्त जान मंगल झुलसती हुई लू और कड़ाकेदार जाड़े और मूसलाधार बारिश में जिंदा था और तंदुरुस्त था। अब मंगल ने पूछा, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा? ये मसला टेढ़ा था। सुरेश ने एक लम्हा गौर करके से कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा? सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल ने किस कदर दिलेर होकर कहा, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन जब तक मुझे भी सवारी करने को ना मिलेगी मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तुम लोग सवार बनो और मैं घोड़ा ही बना रहूं। सुरेश ने हुक्म देने वाले लहजे में कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। इसने मंगल को पकड़ना चाहा। मंगल भागा, सुरेश भी दौड़ा। मंगल ने कदम और तेज किए, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वो सियार खोड़ी ने इसे थल थल बना दिया और दौड़ने से इसका सांस फूलने लगा। आखिर सुरेश ने रुककर कहा, आखिर घोड़ा बनो वरना कभी पाऊंगा। अगर कभी तुम मुझे दिखे तो मैं बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तुम बाद में भाग जाओगे, इसलिए पहले तुम जाओ, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने चकमा दिया। मंगल ने इसके मतलब को बढ़म कर दिया। साथियों से बोला, देखो इसकी बदमाशी, भंगी है। तीनों ने मंगल को घेर लिया और जबरदस्त घोड़ा बना दिया। सुरेश अपना वजनी जिस्म लेकर इसकी पीठ पर बैठ गया और टिक टक करने लगा और बोला, चल घोड़े चल। मगर इसके बोझ के नीचे करीब मंगल के लिए हिलना भी मुश्किल था। दौड़ना तो बहुत दूर की बात थी। एक लम्हे को वो जब्त करे बिना खड़ा रहा, लेकिन ऐसा मालूम होने लगा कि रीढ़ की हड्डी टूटी जा रही है। इसने आहिस्ता से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सड़क गया। सुरेश गिर से गिर पड़ा और भोंपो बजाने लगा। माँ ने सुना, सुरेश क्यों रो रहा है? गांव में कहीं सुरेश रोए, इनकी जकील हसन कानों में जरूर आवाज आ जाती थी, और इसका रोना था कि बस दूर से लड़कों से बिल्कुल निराला जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज। एक मिनट में सुरेश आंखें मलता हुआ घर में आया। आपको जब कभी रोने का इत्तेफाक होता था तो घर में फरियाद लेकर जरूर आते थे। माँ चुप करवाने के लिए कुछ न कुछ दे देती थी। अब तो आए भी 8 साल के बाद थे, मगर बहुत बेवकूफ, हद से ज्यादा प्यारे। माँ ने पूछा, क्यों रो रहा है सुरेश? किसने मारा है? सुरेश ने रोते हुए कहा, मंगल ने छुआ है और इसने मारा है। पहले तो माँ को यकीन न आया, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो यकीन लाना लाजिम हो गया। इसने मंगल को बुलवाया और डांट कर बोली, क्यों रे मंगलू, तो अब तुझे बदमाशी सोचने लगी है? मैंने तुझसे कहा था कि सुरेश को छूना नहीं, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद है। तो फिर तूने इसे क्यों छुआ? तूने नहीं छुआ तो ये रोता क्यों है? ये गिर पड़े इसलिए रोने लगे। चोरी और सीना चोरी। देवी दांत पीस कर रहेगी, मारे तो इस वक्त स्नान करना पड़ता, कमची तो हाथ में लेना ही पड़ती, और छूत की बड़की रोकमची के रास्ते इनके जिस्म में सरायत कर जाती, इसलिए जहां तक गालियां दे सके दी और हुक्म दिया कि इस वक्त यहाँ से निकल जा, पर जो तेरी सूरत नजर आई तो खून पी जाऊंगा। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझती है। मंगल में गैरत तो क्या होगी, खौफ था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। यही तो होगा कि भूख को मर जाऊंगा, लेकिन क्या हर्ज है? इस तरह जीने से फायदा ही क्या? गांव में और कहाँ जाता? भंगी को कौन पनाह देता है? वही अपने बेदरो दीवार की आरथरी, जहाँ पिछले कई दिनों की यादें इसके आंसू पूंछ सकती थी, वहीं जाकर पड़ा और खूब फूट फूट कर रोया। अभी आधा घंटा भी ना गुजरा होगा कि टॉमी बी से ढूंढता हुआ आ पहुंचा, लेकिन जो जो शाम होती गई इसका एहसास से जिल्लत भी गायब होता गया। बचपन की बेताब करने वाली भूख जिस्म का खून पी पी कर और भी बेपनाह होती चली गई। आंखें बार बार सकोड़ों की तरह उठ जाती थी। इसने मशवरतन टॉमी से कहा, खाओगे क्या? मैं तो भूखा ही लेट जाऊंगा। टॉमी ने
कूं कूं करके शायद कहा, इस तरह की जिल्लतें तो सारी जिंदगी सहनी है। फिर जरा देर में दुम हिलाता हुआ इसके पास जा पहुंचा। हमारी जिंदगी इसीलिए है भाई। मंगल बोला, तुम जाओ, जो कुछ मिल जाए खा लो, मेरी परवाह ना करो। टॉमी ने फिर अपने सख्तानी हुई बोली में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। एक लम्हे बाद फिर भूख ने तालीफ का एक नया पहलू इख्तियार किया। मालकन तलाश कर रही होंगी, क्यों टॉमी और क्या बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कोहार ने इनकी थाली का चोटा निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी और मीठी मीठी चीज, हाँ मलाई, हमारी आवाज ना सुनाई देगी तो सबका सब घोड़े पर डाल देंगे। जरा देख लेंगे कि हमें पूछने आता कौन है। यहाँ कौन पूछने आएगा? कोई ब्राह्मण हूँ। अच्छा चलो तो वहीं चले, मगर छुपे रहेंगे। अगर किसी ने पुकारा तो मैं लौट आऊंगा। किसी ने ना पुकारा तो मैं वापस लौट आऊंगा, ये समझ लो। अब दोनों वहां से निकले और आकर महेश नाथ के दरवाजे पर एक कोने में दुबक कर खड़े हो गए। टॉमी शायद इधर उधर खबर लाने के लिए चला गया। महेश बाबू थाली पर बैठ गए थे और नौकर आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा, आज मंगलू नहीं दिखाई देता, भूखा होगा बेचारा, मालकन ने डांटा था इसलिए भागा था शायद। मंगल जी के जी में आया, चल जा। इस आदमी के कदमों पर गिर पड़े। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाला क्या, नहीं तो सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। अब क्या उम्मीद की जा सकती थी। महेश और सुरेश थाली से उठ गए। नौकर हाथ मुंह दहला रहा था। अब बाबूजी हुक्का पियेंगे, सुरेश सोएगा। गरीब मंगल की किसे फिक्र है। इतनी देर होगी किसी ने नहीं पुकारा, कौन पुकारेगा। मंगल आध घंटे तक वहां दुबका रहा, किसी ने इसका नाम ना लिया। इसने लंबी सांस ली और जाना ही चाहता था कि किसी ने इसको कहा, एक थाल में जूठा खाना लेकर जाते देखा। शायद घोड़े पर डालने ले जा रहा था। मंगल अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गया। अब सब्र न हो सकता था। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था। हमने कहा कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने जा रहा था। मंगल ने कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था। कोहार ने कहा, तू बोला क्यों नहीं। मंगल बोला, डर लगता था। मंगल ने कहा, इसके हाथ से थाले ले ले और ऐसी नजर से देखा कि जिससे मैं शुक्र और एहसान मंदी की एक दुनिया छुपी हुई थी। फिर वो दोनों नीम के दरख्त के नीचे हस्बे मामूल खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सर से हिलाकर कहा, देख पेट की आग ऐसी होती है, लात की मारी हुई रोटियां भी ना मिलती तो क्या करते। टॉमी ने दुम हिलाई। सुरेश को अम्मा ही ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता। टॉमी ने दुम हिला दी। और मुझे दूध का ये दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिला दी।